Hi everyone, this is Bhavika and today we have with us Miss Simran Juneja. She works for healthcare and is also a traveler. Hi Simran. Hi everyone, thank you for having me, Bhavika. For everyone, hi, I'm Simran Juneja and I'm 22 years old and currently I am working as a project coordinator for Counselors. Okay. Simran, can you give us a brief introduction about yourself? As I said, I've just graduated. I've done my BBA from Amity University and I was pursuing from my MBA. So that time I didn't have. I was working as here and there internship, but I find it like if I have some time for volunteering, so why not to do that? So I've joined Counselors. I have already joined it, so I've joined as a project coordinator for now. So yeah. Okay. How you started, like, how do you get the inspiration to what you are doing right now? Okay. So if I say so, the volunteering was always, you can say in my blood. But as I grew, I knew, I need to do something for the society. That was, it was always on back of the mind. Like I wanted to do something for the society. And Counselors has come handy to me 5 years back when I was just looking out for opportunities for volunteering. So that time I didn't even knew what was volunteering. I was doing since my childhood, but I didn't knew the term volunteering. So that's how I got attached to the Counselors. And from 5 years till now, there is no looking back. I really wanted to do something. Okay, so what work you have done for the NGO, the organization that you are associated with till now? Yeah. So if I say so, what is Counselors? I would like to, introduce you. Like Counselors is a volunteer-based NGO, which engaged in medical clowning. It's a, therapy wherein we dress up as clowns, go to hospitals and NGOs and different, vulnerable spaces. It's kind of therapy wherein we use humor to expedite the healing process of a patient or everyone who is going through a lot. It is more related to the catering mental health within the physical health and Okay. besides physical health. तो जैसे आप क्लाउन की तरह काम करते थे मतलब लोगों को बेसिकली एंटरटेन करते थे और उन्हें उनके पेन से थोड़ी देर के लिए बेशक दूर लेके जाते थे तो आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा उन पेशेंट से उन फैमिली से तो आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं इस 5 इयर्स के प्रोसेस में Yeah, of course. Tell you more about volunteering. Like volunteering is more. It is more than just lending your time. I feel like it is more about contributing to the betterment of the society, fostering connections, and experiencing personal growth also. Like it's a chance to share your skills, passions, and empathy with others, and so making the world a better place. I feel like so during 5 years I've learned a lot. How to encourage people, how to be empathetic with other people, how to feel every emotions of other people. And the empathy and gratitude is, these two words plays a really important role in my life. I feel like if that, these two things weren't there, I feel like not me, but every individual need this empathy and gratitude word in their life to, grow in the future, grow as a person as well. Grow as an individual. So if I feel like I've learned a lot through these years, and I'm currently, on a way to, learn more new things. तो जैसे आप जब हॉस्पिटल्स में जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती होगी तो उन्हें देख के आपको भी फील होता होगा तो डिफिकल्टी नहीं होती थी उनके सामने खुश रहना अपने आप को खुश एक्सप्रेस करना तो क्या प्रॉब्लम होती थी कुछ तो हुई होंगी मतलब Yeah, of course. Of course, it takes a toll on your mind and even your mental health a lot. I won't say कि don't clowning don't drain me.
clowning do drain me a lot, but again there is a motivation that comes in. I would like to, I mean, share my experience, I mean, with you. uh, एक दिन मतलब I was going through a lot, I mean, in my personal life. So when I visited, मतलब मेरे को बिल्कुल जीरो मोटिवेशन के साथ गई थी कि लेट्स सी, मतलब जाना है, देखते हैं, अगर इधर नहीं दिमाग लग रहा है तो वहां करके देखती हूँ. एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो गर्ल was lying, or I mean she was a special child, but मतलब उसको दिखता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. I mean मुझे नहीं पता, बट उसको सिर्फ आवाज समझ में आ रही थी मेरी ओनली. मतलब आई एम टेलिंग यू द सेंसेस, कि एक सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मतलब मैं नहीं बोल रही उसके मतलब 5 सेंसेस ओपन थे, बट हाँ एक सेंस भी. मैं उसके पास गई, शी कुड हियर द साउंड ऑफ मी, आई मीन लाफ्टर, मेकिंग फन, मेकिंग इंटरेक्ट विद हर. उसने इतना ज्यादा, मतलब शी टच्ड माई विक्स, क्योंकि आई मीन हम विक्स पहन के जाते हैं, तो शी टच्ड माई हेड, और वो विक्स देख रही थी कि समथिंग इज, आई मीन, देयर ऑन हर हेड. मैंने उसको बताया कि मैं कौन हूँ. उसने कभी जोकर देखा भी नहीं होगा, बट मैंने उसको विजुअलाइज पूरा कराया ना. मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर उसके इतना ज्यादा, मतलब उसको, और फिर उसके बाद शी वाज टेलिंग मी कि आप इधर ही रहो, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ. मेरे को ऐसे लग नहीं रहा. मतलब आई वाज, आई मीन, इनसाइड आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी, कि मतलब इतना ज्यादा अटैचमेंट, सिर्फ जस्ट अ 5 minutes और 3 minutes, आई मीन, टॉक ना. बट उसका एक्सपीरियंस, और आई मीन अब 5 years हो गए तो बहुत सारे हैं, बट ये मेरा अभी रिसेंट वाला एक्सपीरियंस, तो मतलब यही मोटिवेशन है कि भैया करना है तो करना है, क्योंकि अगर उनको मिल रहा है तो ऑफ कोर्स क्या हो सकता है. और ओल्ड एज होम में जब हम जाते हैं, वहां पे तो मतलब ऐसे होता है कि ट्रॉमा ऐसे खत्म ही नहीं होता, कि आई लॉस्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई मीन, वे बैक. तो मुझे लगता है अगर मैं उधर जाती और कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए, तो उनको कितना अच्छा लगता है. मतलब मेरे को ऐसे कभी कभी पिटी फील होता है कि वाई डू पीपल इवन डू दिस थिंग्स, मतलब क्यों छोड़ के जाते हैं. आई ऑलवेज वंडर, आई मीन, ये क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है दुनिया में. बट फिर मुझे यही लगता है, हम जैसे, या हम यंगस्टर्स अगर ऐसे करने लग जाएं, उधर जाने लग जाएं, उनको ही हैप्पीनेस देने लग जाए, तो आई थिंक, आई मीन, न्यू जनरेशन विल अंडरस्टैंड कि वी डोंट हैव टू, आई मीन, एक्चुअली सेपरेट our parents with, I mean, just for, I mean, society. और हम अगर ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पे हो रहे हैं, तो हमें ये नहीं है कि अपने पेरेंट्स को इधर उधर छोड़ के जाना है. I mean, मेरे को वो बहुत ज्यादा है, ऐसे जो वैल्यू सिस्टम होती है ना, जो कोर्स, ऑफ कोर्स मम्मा पापा ने हमेशा से सिखाया है, बट जो अंदर से बोलते हैं ना, सिखाते हर हैं, बट एक्सपीरियंस करने के बाद आपके स्ट्रांग हो जाते हैं पर्सपेक्टिव्स. मतलब मैंने ऐसे देखा है कि इतने स्ट्रांग हो चुके हैं ना मेरे कोर वैल्यूज की, ये तो नहीं करना है लाइफ में. तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में बिलीव रखते हो ज्यादा? जो आई वुड नॉट से जॉइंट फैमिली, ऑफ कोर्स, मतलब मैं हमेशा से न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ. मेरा नहीं है कि मैंने जॉइंट फैमिली में रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट, बट हाँ ऐसा है कि आप ये नहीं बोल रही छोड़ दो इजंस, कि आप छोड़ दो, आप एक ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हो. दैट इज, आई मीन, दैट इज द प्रॉब्लम. आई मीन अगर आप उनको ऐसी, आप देखोगे ओल्ड एज होम इजंट दैट फन. अगर आप बोलोगे तो बहुत फन है, दे आर नॉट फन. अगर मम्मी पापा को एक्चुअली में, अगर उन्होंने आपको इतने प्यार से मतलब आपकी ग्रोथ करी है, तो दे डू वांट इनसाइड कि आप उनकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, जब वो एंडिंग में स्टेज में. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, आई मीन, दैट्स कीप मी मोटिवेटिंग, और फिर मैं जाती रहती हूँ. अच्छा, तो शायद से थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बट जैसे आप हॉस्पिटल्स बहुत पेशेंट्स को विजिट करते हो, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या है, कि मतलब क्या बीमारी है लोगों को, मेंटल है, फिजिकल, अगर फिजिकल भी है तो क्या प्रॉब्लम्स है ज्यादा उनमें? प्रॉब्लम्स एज इन हॉस्पिटल्स में तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, बट हाँ रिसेंटली वी हैव सीन कि लोगों में ना, मतलब इवन कैंसर पेशेंट, इफ आई टॉक अबाउट कैंसर पेशेंट, हम देखते हैं कैंसर वार्ड्स में जाते हैं, वो उस बीमारी से तो ऑफ कोर्स उनको गॉड ने, आई मीन, जैसे भी तरह से उनको हुई है, आई मीन, वो रिप्लेसेबल नहीं है. बट हाँ वो ज्यादातर उनको क्या होता है कि हम, उनको इतना स्टिग्मा अटैच्ड है उनके साथ कि कैंसर हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू डाई. मतलब वो स्टिग्मा की वजह से वो और फिजिकली ड्रेन्ड हो जाते हैं, जिससे, आई मीन,
अगर नहीं भी होना होता तो वो पहले दिमाग उनका कितना इंपॉर्टेंट है। तो देयर इन आई फील लाइक काउंसलर्स क्लाउनिंग हेल्प्स अलॉट, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होगी, यू कांट बी, हम खुश नहीं रहेंगे तो हम फिर तंदुरुस्त भी नहीं रहेंगे, दैट्स द एम। तो आई फील लाइक लाफ्टर, जो बोला है ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो आई फील लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट। वो बहुत होता है, और मेंटल हेल्थ में लाफ्टर ऑफ कोर्स प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। तो आई फील लाइक ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी बीमारियां तो होती रहती हैं, बट वेर इन जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं वो है मेंटल, मतलब उन्हें मोरली कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। या कि उन्हें बीमारी से लड़ने की मेन शक्ति मिले। मोटिवेशन। हाँ, मुझको तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब आपने जैसे 5 years काम किया है, तो डू यू वांट टू वर्क ऑन इट फर्दर? और आगे अगर आप जैसे काम करते थे, आप क्या और करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट? सिर्फ एज अ वॉलंटियर या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलना या क्या? Yeah, of course. Maybe 20 years down the lane, I'll do, want to, but as of now, I don't want to leave volunteering, as volunteering will go handy in my career. But of course, I have future plans to do my MBA and my career. I want to take there also. But of course, volunteering will not be a part of my, career. It is going to be there, but ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ अभी मैं टाइम दे सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना टाइम दे सकती हूँ दे रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि आने वाले टाइम में करूंगी नहीं, बट ऑफ कोर्स I'll motivate, I'll encourage more people to do volunteering, because as I said कि it is not about lending your time, it is more about आप कितने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाते हो लोगों के साथ। वो ह्यूमन कनेक्शन जो हम मिस कर रहे हैं ना, वो आई फील लाइक वॉलंटियरिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक दूसरे को लोगों से मिलते हो, आप कितनी न्यू न्यू चीजें सीखते हो। मैंने अपने करियर में इतनी स्किल्स नहीं सीखी होगी जितनी मैंने वॉलंटियरिंग के थ्रू सीखी है। मतलब पैशन, आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब लोगों से मिलते हो। हमने बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर से सुना होगा कि हम हर दिन एक न्यू इंसान से मिलते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर एक इंसान आपको कुछ सिखाता है। सो आप वॉलंटियरिंग विल गो इन, जब आप हर किसी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंसान से मिलोगे तो आपको बहुत सारी, आपको ह्यूमन कनेक्शन आएंगे, आप अंडरस्टैंड करोगे लोगों को, एम्पैथी रखोगे उनके अकॉर्डिंग। मतलब इट taught you a lot, volunteering. So मैं वो छोड़ने नहीं वाली, but of course I'll move on my career ahead as well, because I'm into marketing. So I want to, build that career also. वो बोलते हैं ना कि अभी तो मतलब अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं खोल के हेल्प कर पाऊँ, बट ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम है, मेरे पास एनर्जी है कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो अभी तो मैं वो कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स इन फ्यूचर श्योरली वांट टू डू समथिंग। ओके, जैसे आई थिंक कि हम जब भी कुछ नया सीखते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, तो हम खुद एज अ पर्सन इवॉल्व होते हैं। और यस, तो ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर चेंज हुई है इन दीज 5 years ऑफ वॉलंटियरिंग एंड मीटिंग सो मेनी पीपल? फील लाइक पेशेंस बहुत मेरी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मेरे अंदर पहले आई फील लाइक, अगर मैं बोलती हूँ अपनी पर्सनल ग्रोथ में, मैंने देखा है पेशेंस पहले तो बहुत कम थी मेरे अंदर। अब मुझे पता है, क्योंकि हम एक्ट करते हैं, हर कोई बंदा एक दो एक्ट में, अगर मैं कुछ सर्टेन एक्ट परफॉर्म करती हूँ वो नहीं हंसते हैं, बट क्योंकि हमें होता है कि हमें हाँ इनको मोटिवेट करना है, हम वी कीप ट्राइंग ऑन न्यू थिंग्स। वो पेशेंस बोल रहे हैं ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि रुक के चल छोड़ नहीं हंस रहा आगे बढ़ते हैं, नहीं, मतलब वी कीप ट्राइंग ऑन कि नहीं किसी तरह से तो करना है ना। वही बोलते हैं कि वो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए कि हम एंड गोल तक पहुंचे अपने। तो पेशेंस बहुत सीखी है मैंने, वर्किंग हार्ड बहुत सीखा है, मीटिंग न्यू पीपल, आपको बहुत सारी वैल्यूज देखते हो आप, मतलब हर किसी से सीखते हो। तो आप अपनी, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें लगता है ना हाँ ये तो हमें भी करना चाहिए लाइफ में, हम बहुत सारी चीजें उनसे लेते हैं। तो आई फील लाइक काउंसलर्स मतलब श्योरली मेड बी एन बेटर इंडिविजुअल इन माई लाइफ। मैं ये नहीं बोल रही अभी बहुत मैं बेस्ट हूँ अपने स्टेज पे, बट ऑफ कोर्स मैं अगर 5 साल से अभी देखूं, हाँ मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं जितनी पहले इश्यूज थे मेरे लाइफ में, बट अब बहुत सारे रिजॉल्व हो गए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वहां देखती हूँ ना, फिर मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम है, एक ही लाइफ है, जस्ट फॉरगिव पीपल और जस्ट मूव ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप
हमेशा मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं, मतलब कि एक बार तो बंदा हो जाता है ना, इतने लोग आपके आसपास जो इतने बीमार हैं और खुद की भी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं बहुत बार, जो हमेशा मोटिवेशन की दूसरों को खुश रखना नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो कहाँ से मिलती भाई अगेन मैं ये नहीं बोलूंगी मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ क्लाउनिंग के लिए, बट हाँ एक वो अब जील, अब बोलते हैं ना एक फेवरेट हॉबी के लिए भी आप करते हो। अब मैंने बोल दिया है कि मतलब क्लाउनिंग हैज ऑफ कोर्स फेवरेट हॉबी रही है मेरी। मतलब मुझे ऐसे लगता है अगर समथिंग इज गोइंग बैड इन माय लाइफ तो मैं उधर जाती हूँ और वेंट आउट कर देती हूँ। बट हाँ अगर वहां की सिचुएशन देख के मेरे मेरे अंदर भी बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते आ रहे हैं, आई मीन ऑफ कोर्स। बट अगेन धीरे धीरे फ्रेंड्स फैमिली डू मोटिवेट। अब बोलते हैं ना अगर किसी को अप्रिसिएशन मिलता है तो दे वर्क मोर हार्डर। तो अगर अप्रिशिएट मुझे मिल रहा है सोसाइटी से, आई मीन आई गो टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स, आई मीन फैमिली में फ्रेंड्स में कभी भी गैदरिंग होती है तो एवरीबडी नोज, तो वहां पे वो अप्रिसिएशन बोल रहे हैं। मतलब दे आर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स फॉर मोटिवेशन। आई मीन मैं वो सभी फैक्टर्स को कनेक्ट कर करके अपनी मोटिवेशन निकाल ही लेती हूँ, अनलेस मतलब अभी तो आ ही रही है, लेट्स सी हाउ इट विल टर्न। है? तो अगर जैसे मैं हूँ, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, या फिर कोई भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें अपने लेवल पे स्टार्ट करना हो, जैसे आप हेल्थ केयर के लिए करते हो, तो उन्हें भी ग्राउंड लेवल पे अगर कुछ शुरू करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, कि कुछ भी सोशल वर्क करना। देर आर लॉट ऑफ एनजीओज आउट देयर, सो वही बोल रही हूँ बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, और हम मैं बहुत सारे यूथ को आई मीन आई वांट टू आई मीन रिप्रेजेंट यूथ, सो आई वांट यू टू ऑल I mean, do volunteering. Volunteering will change you as a person, I'm sure. And I've done it. I have experiences, so I know how it is going to be a life changing experience for all of you guys. So I want, I mean, youth to join. I'm not saying join my NGO or different NGO. I'm telling you to do volunteering because that will make you empathetic as a person. I mean, वो बहुत important चीज है। तो मैं बोल रही हूँ वॉलंटियरिंग इज अ पार्ट। आप अपने लेवल पे भी कुछ भी कर सकते हो जहां आपको लग रहा है देयर इज अ लेड बैक, क्योंकि हम देखते बहुत है अपनी लाइफ में डेली लाइफ में कि कभी किसी को कुछ जरूरत है, किसी को हम किसी भी एक वे में मतलब एक वो बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड फील करके, आई मीन कोई जा रहा है उसको यही पूछ ले आपको कि किसी चीज की नीड है, तो वो भी एक हम अपनी तरफ से वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी करो, बट हाँ एक वो बोलते हैं ना एक अपना टिक मार्क डेली करके आओ कि आई हैव डन समथिंग गुड। तो वो एक टिक मार्क करने लगोगे तो आई मीन इवेंचुअली यू विल grow. But of course you can volunteer as a counselors also. I mean I would like to invite you all to join the counselors and do volunteer with us. I mean it will help you to grow as a person also and help the society also. तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमें करना हो आपका एनजीओ, Okay. किसी को भी करना हो So मतलब? So you can join us. I mean, there's a website called www.counselors.com. So you can register there. I mean, there is a volunteering with us link there. So you can register with us and we'll start doing volunteering. ओके। तो एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि हम जैसे अपनी डेली लाइफ में भी बहुत कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है बेसिकली, कभी कभी बट हम एकदम से अपसेट हो जाते हैं किसी नॉर्मली, या फिर कभी कभी हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आजकल तो वैसे भी डिप्रेशन बहुत कॉमन है यंगस्टर्स में भी, मोस्टली ड्यू टू सोशल मीडिया। तो अगर हमें नहीं अच्छा फील हो रहा है, या हम अपसेट है, हम डिप्रेस्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं उसे कम करने में? कम करने में ऑफ कोर्स आई मीन मैंने अभी जैसे पहले भी बोला है कि फैमिली फ्रेंड्स प्लेज यू इम्पोर्टेंट। अगर वो नहीं है तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत ध्यान दे सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है खुद से, आई मीन फॉर मी लिसनिंग अ म्यूजिक, ड्राइविंग माई कार, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है आपके लिए। सेल्फ थेरेपी, रीडिंग अ बुक, मतलब बहुत सारे तरीके हैं आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। ग्रैटिट्यूड लिखना चालू कर दो। देयर इज लॉट ऑफ आई मीन वेज वी कैन इम्प्रूव इन आवर लाइफ। तो वो हमें खुद के लिए क्या अच्छा लग रहा है वो खुद ही को पता होता है।
तो वो वाली एक्टिविटी अगर हम टिक मार्क करने लग जाएं तो ऑफ कोर्स हम बहुत, आई मीन ये वाले स्ट्रेस, आई एम नॉट सेइंग मुझे नहीं होता, मुझे भी ऑफ कोर्स होता है। एज वी ग्रू बहुत सारी स्ट्रेस एंजाइटी होते हैं, आई मीन डिप्रेशन इज, आई मीन अलॉट, बट हाँ स्ट्रेस एंजाइटी इवन आई फेस, बट ये नहीं है मतलब आई स्टिल ट्राई इवन ड्रेसिंग अप टुडे। आई मीन अगर मैं खुद से उठ के ड्रेस अप कर रही हूँ, दैट विल ऑल्सो मेक यू स्माइल। सो कुछ भी करो जो आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब कुछ भी करना जो आपको अच्छा लग रहा है, ये नहीं कि उसको अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, आई मीन इट किल्स यू एज अ पर्सन अगर आप नहीं हो, बट हाँ सोशल मीडिया ऑल्सो टीच यू अ लॉट। हम सेल्फ हेल्प थेरेपी कितनी सारी देखते हैं, हम वो उस पे ध्यान नहीं देंगे कि वहां हम वो फटाक से स्वाइप कर देंगे, बट हाँ रील कोई देखनी हो, कोई म्यूजिक रील देखनी हो, वो हम पूरी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, बट हाँ अपनी लाइफ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी उसको तो हम पढ़ेंगे भी नहीं कि क्या हेल्प हमें कर सकते हैं। सो अगेन हमें खुद पे भी देखना पड़ता है क्या हमें, क्या चीज हमें अच्छी लग रही है, तो उस पर हम करेंगे तो श्योरली विल overcome all of this stress, anxiety and depression. I feel like of course you can contact the psychologist as well, I mean if you're going through a lot. तो आजकल लोग मेंटल हेल्थ के लिए कितने, इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी लोग shy away from going or taking a help from a psychologist, but really it will help you. वो ऐसा नहीं है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई बीमारी हो जाए, फट से बुखार होता है फट से जाते हैं, अगर कुछ एंजाइटी भी हो रही है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, पैसे बर्बाद लगते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दे आर साइकोलॉजिस्ट, अगर वो है तो किसी काम के लिए, हम क्यों इतना शाय अवे करते हैं कि नहीं। करियर काउंसलर हम पहले बिल्कुल नहीं जाते थे, मम्मा पापा उनसे पूछ लो, ये पूछ लो, बट हमें ये नहीं पता था हमें क्या अच्छा लगता है, हम क्या बनना चाहते हैं, तो हम करियर काउंसलर नहीं चूज करते थे। ये भी कोई फील्ड है चूज करने के लिए, बट अगेन अगर है तो टेक द हेल्प। आस्किंग फॉर हेल्प, टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स विल नॉट मेक यू, विल नॉट ब्रेक यू, आई मीन। मतलब काफी लोगों को, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन में, तो लगता है कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्या है? यही, वो बहुत जरूरी है उनको गाइड करना। अगर उनके जनरेशन में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट हमारी जनरेशन में तो है ना, वी कैन ऑल्सो हेल्प, आई मीन हम उनको भी सिखा सकते हैं। मतलब वही बोल रही हूँ कि अगर आपको पता है तो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने घर पे कर सकते हो। आई हैव डन, मैंने अपने घर पे वो अवेयरनेस बना सकती है। आई हैव टेकन द करियर काउंसलर एक्टिविटी, मतलब मैंने अपने 11th-12th में ले ली थी, बट वो नहीं, मम्मा पापा को ये नहीं लगा कि नहीं ये गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर रही है, उनको कभी भी नहीं लगा। वही बोल रहे, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने घर से चेंज करने का। अगर आप नहीं चेंज करोगे तो वो नहीं होने वाला है, फिर तो वो यही सोचेंगे कि हाँ क्या ही जरूरत है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बट दे आर अ लॉट ऑफ, आई मीन ऑप्शंस आउट देयर, हम क्यों नहीं करते हैं? आई डोंट नो व्हाई, आई मीन। तो जैसे आपने अभी पीछे भी ये एक्सपीरियंस बताया कि वो जो लड़की थी जिस दूसरे अपने 1 cent से, तो कैन यू शेयर सम मोर एक्सपीरियंसेस विद अस? या ऑफ कोर्स आई कैन, आई मीन 5 years में मेरे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कभी कभी तो, और डेली मतलब मैं जब भी जाती हूँ ये एक्सपीरियंस न्यू ऐड होता ही है, क्योंकि कुछ तो स्पेशल हो ही जाता है। बट या आई मीन वन क्लोज टू माई हार्ट इज लाइक, एक एनजीओ है किलकारी होम करके, वहां पे देयर इज अ गर्ल, आई मीन पता नहीं, आई हैव अ डिफरेंट कनेक्ट विद हर। मतलब मैं अभी भी जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मुस्कान इज वेटिंग फॉर मी। सो आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, और मतलब मैं, सब बच्चे थे वहां पे, सबके साथ कर रही थी, बट एक वो बोलते हैं ना एक कनेक्शन, पता नहीं कैसे होता है, तो उसका मेरे साथ हो गया। मतलब आई वॉज हैप्पी, बट जब मैं लीव कर रही थी उसे, तो उसको लग रहा था कि हाँ जा रही है वो। ऑफ कोर्स वो, इट्स हार्ड टू से गुड बाय टू देम, मतलब वो क्योंकि दे वांट अस, तो फिर हमें इतना बुरा नहीं लगेगा जितना उन्हें बुरा लगता है कि हाँ ये भी जा ही रहे हैं। तो वन डे मतलब वो उस दिन हो गया, बट ना आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मतलब वो कनेक्ट तो था ही, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी अगेन टू गो देयर। सो मैं वहां दोबारा गई, और जब वो मुझसे मिली ना मुस्कान, वो लिटरली शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने बोला रो क्यों रहे हो? तो बोला पता आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि प्लीज सिमरन दीदी को वापस भेज दो, प्लीज सिमरन दीदी को वापस भेज दो। आई वाज लाइक, मतलब उसे याद थी मैं वही बहुत थी, तो बोल रही थी मैं जाती थी ना कभी कभी और मैं बहुत सैड होती थी, तो मैं ऐसे थी भगवान जी प्लीज। और शी इज लिटिल गर्ल, मतलब अब मैं देख रही हूँ ना, लाइक 5 years हो गए, मैं उसको इतने छोटे से ऐसे देख रही हूँ ना नाउ,
वहां पे वो और छोटी छोटी बच्ची आ गई, उनको उनके साथ डील करती है, फिर वो बोलती है कि देखो मैंने, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है। शी शेयर हर एक्सपीरियंस, मतलब वो बोलती थी ना पहले कि आई वॉज लिटरली क्रेविंग कि सिमरन दीदी वापस आ जाए, और आप आगे भगवान जी ने मेरी सुन ली। तो ऐसे लगा कि यार मतलब कितना स्पेशल बॉन्ड है, मतलब कितना। फिर आगे मेरी छोटी वाली सिस्टर को भी मैं लेके जाती हूँ अपने साथ, जब वो थर्ड टाइम उसके साथ विजिट करी, क्योंकि आई डू शेयर माई एक्सपीरियंस विद माई फैमिली एज वेल, तो वो बोलते थे, मैं थर्ड टाइम, मेरी बहन ने यही बोला कि मुझे भी मिलना है उससे। थर्ड टाइम गए उसने, फिर शी स्टार्टेड, वो बोल रही कि मुझे भी सृष्टि सिमरन दीदी ने आपके बारे में बताया था। दे बॉन्डेड सो वेल, मतलब मुझे ऐसे लगा वो कनेक्शंस अभी इतना स्ट्रांग हो चुका है ना कि शायद मेरे या किसी और के साथ भी नहीं। और दैट वाज लाइक मैजिकल टू मी, मतलब वन डे एक आप अलग सा ही डिफरेंट कनेक्शन किसी के साथ हार्ट टू हार्ट बना लेते हो। आई मीन वो बहुत स्पेशल है अभी तक। आई मीन आई होल्ड, आई मीन देयर इज मुस्कान इनसाइड मी। Okay. So let's wrap up the interview with last question. What is your message to viewers? जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू, आप उन्हें क्या कहना चाहते To wear, I mean, to all my viewers, please do enjoy your life, be happy, and keep smiling. That is, I mean, a very important thing. So keep smiling and happy volunteering to all. Thank you very much, Simran, for joining Thank today with you. us. Thank you, Babika.